Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my entrepreneurs to today's class, and it is a very important class from the perspective of understanding this specific subject as well as, to prepare for the examination. It's a very important class. So today's class is from Unit 3, that is Enterprise Marketing, and today's topic is place mix. This is class number 7, and in this class we are going to study in detail about the channels of distribution. So let's have a look towards the points under discussion. In today's class we are going to talk about the topic place mix. Point number 1, producer customer. It is a direct channel, zero level. Producer, retailer, customer, indirect channel means one level. Producer, wholesaler, retailer, customer, two levels. Producer, agent, wholesaler, retailer, customer, three levels. Then we are going to talk about product consideration and market consideration. So let's start today's class with the introduction to channels of distribution. And today's topic is place mix, how places are mixed together in order to provide channels, step by step, channels of distribution. This is what we are going to study in today's class. Let's take up the introduction. A channel of distribution or trade channel is the path or route through which goods move from producers to consumers और इंडस्ट्रियल यूजर्स. तो बच्चों, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसे आप ट्रेड चैनल भी कह सकते हैं. ये एक पाथ है, एक रूट है थ्रू विच गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड दे आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स. देयर मस्ट बी places from where goods is being produced. It reaches to one place, to the next place, to the third place, and then finally to the customers and the consumers. So इसे कहा जाता है channels of distribution. Various places where good reaches in order to get consumed by the consumers. तो इसे कहा जाता है route. एक trade channel है. Second point, this network allows producers to place their products in the market and pass them on to actual users. और ये नेटवर्क अलाउ करता है प्रोड्यूसर्स को टू प्लेस देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट और फिर उसे पास करे एक्चुअल यूजर्स की तरफ या उनके लिए. द चैनल इंक्लूड्स वन प्रोड्यूसर्स, टू कंज्यूमर्स and various middlemen like wholesalers, selling agents, and retailers who intervene in between the producers and the consumers. अब बच्चों, जब माल एक जगह बनेगा और दूसरी जगह पहुंचेगा और जो उस माल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएगा, he actually is a middleman who will charge a percentage of the good in order to provide it to the final consumer. If you talk about producer, वो प्रोड्यूस करेगा. इफ यू टॉक अबाउट होलसेलर्स, वो थोड़ी सी परसेंटेज लेके उस प्रोडक्ट के ऊपर उसे आगे रिटेलर को देगा और रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को देगा. फिर डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी सी परसेंटेज रख के रिटेलर को देगा एंड रिटेलर फिर फाइनली थोड़ी सी और परसेंटेज रख के कंज्यूमर को देगा. तो सोचने समझने वाली बात यह है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और जितने मिडलमैन इस पे अपनी परसेंटेज लेते हैं, द फाइनल परसेंटेज इज बीइंग कोलैबोरेटिवली, सबकी परसेंटेज मिला के जो फाइनल परसेंटेज एक्यूमुलेट होगी इज बीइंग पेड बाय द कंज्यूमर ओनली. So that's why consumers are very very important. कस्टमर आज राजा है और कल महाराजा है. That's why it is. This channel bridges the gap between production and consumption, creating time, प्लेस एंड पोजेशन यूटिलिटीज. तो बच्चों, ये जो चैनल है
ये ब्रिज करता है गैप को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफैक्ट दिस होल पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस चैनल ब्रिजेस द गैप, मतलब एक तरफ प्रोड्यूसर है और एक तरफ कंज्यूमर है, तो दिस चैनल ब्रिजेस द गैप, एक ब्रिज बना के रखता है, और प्रोड्यूसर से लेके जो कंज्यूमर तक माल जाता है उसे कहते हैं इट गोज थ्रू चैनल, एक्चुअली इट गोज थ्रू चैनल्स। So this channel bridges the gap between producers, production and the consumption, creating time, place and possession utility. और इसमें समय भी लगता है, एक प्लेस से दूसरी जगह प्रोडक्ट को पहुंचाया भी जाता है, एंड देन फाइनली possession of the product starts happening. So this is an introduction. Point number 5. A channel of distribution involves three types of flows: the downward flow of goods from producers to consumers. The upward flow is the flow of cash payments for goods from consumers to the producers. तो बच्चों, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें तीन टाइप का फ्लो होता है. द फर्स्ट वन इज द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स बनाए जाते हैं और वो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स पहुंचाए जाते हैं. सेकेंड वन इज द अपवर्ड फ्लो. दिस इज द फ्लो ऑफ कैश. जो भी गुड्स यूज हुए हैं उसमें जो पेमेंट्स हैं वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक पहुंचती है. एंड थर्ड वन इज द फ्लो ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इन बोथ द डायरेक्शन. और थर्ड है फ्लो ऑफ मार्केटिंग, जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. So, a channel of distribution involves three types of flows. One is the downward flow, another one is the upward flow, and the third one is the flow of marketing, which is, both directions flow. Very, very important point. Information on new products. Information on new products or uses flows from producers to consumers, while feedback on wants, suggestions, and complaints flow from consumers to producers. Entrepreneurs have several alternative channels of for distribution or distributing their products, varying in the number and types of middlemen involved. तो बच्चों, इंफॉर्मेशन का जो नए प्रोडक्ट्स होती है उसका इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट फीडबैक्स, वॉन्ट्स, सजेशन, कंप्लेंट्स, इनका फ्लो होता है फ्रॉम कंज्यूमर्स टू द प्रोड्यूसर्स. और 7th पॉइंट में बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव चैनल्स होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मिडल मैन इन्वॉल्व. कई बार एक भी मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता, कई बार एक होता है, कई बार दो होते हैं, और कई बार मैक्सिमम 3 मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं. उसी के बारे में हम आज फर्दर स्टडी करेंगे. सम चैनल्स आर शॉर्ट एंड डायरेक्टली लिंक प्रोड्यूसर विद कस्टमर्स. कुछ चैनल्स छोटे होते हैं जहां पर जो व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसे सीधा कनेक्ट कर दिया जाता है कस्टमर्स के साथ. with others are longer while others are longer involving one or more middlemen. जबकि और जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉन्ग होते हैं, इट इन्वॉल्व्स वन और मोर मिडलमैन. सो these are the channels of distribution broadly divided into 4 types. The first one is producer and customer, which is direct channel or zero level. इसमें प्रोड्यूसर सीधा कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल. ये लेवल अभी 1 आएगा तो एक व्यक्ति और ऐड हो जाएगा अभी. सेकेंड इज प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कस्टमर. तो यहां पे आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर सीधा कस्टमर के साथ जुड़ा तो इसे कहा गया डायरेक्ट चैनल.
अब प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में एक मिडलमैन आ गया, रिटेलर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट चैनल एंड वन लेवल। अब ये डायरेक्ट नहीं रहा है, बीच में मिडलमैन के आने की वजह से इनडायरेक्ट हो गया वन लेवल। सेकेंड, थर्ड वन इज प्रोड्यूसर। अब दो मिडलमैन हो गए हैं, होलसेलर और रिटेलर। कस्टमर, इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टू लेवल्स, क्योंकि यहां पे पहले एक मिडलमैन जुड़ा, अब यहां पर एक और दो मिडलमैन जुड़ गए। फिर प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। यहां पर एक, दो और तीन, यू नो व्यक्ति जुड़ गए हैं बीच में। दे हैव बिकम मिडलमैन नाउ, और इसे कहा जाता है थ्री लेवल। अगर दो व्यक्ति जुड़े हैं, होलसेलर और रिटेलर, बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर, उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट टू लेवल। अगर एक व्यक्ति जुड़ा है, उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट वन लेवल। और अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, तो उसे कहा जाएगा डायरेक्ट चैनल, जीरो लेवल। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स ऑल दीज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन बाय वन। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। Let's talk about the direct level, which is channel that is zero level. यहां पर प्रोड्यूसर सीधा कस्टमर को बेच रहा है। कौन से ऐसे गुड्स हैं बच्चों जो प्रोड्यूसर सीधा कस्टमर को बेच सकता है? This simplest and shortest channel involves no middleman, with producers directly selling their products to consumers. It's a fast and economical way, allowing producer to handle all marketing activities and have full control over the distribution. Producers may sell directly through door-to-door sales, direct mail, or their own रिटेल स्टोर्स। यहाँ अगर वो डोर टू डोर सेल्स कर रहा है, डायरेक्ट मेल्स भेज रहा है, या उनके अपने रिटेल स्टोर्स हैं, तो वो खुद ही बना रहे हैं, खुद ही अपने रिटेल स्टोर पे माल रख रहे हैं, और वहां से आकर कंज्यूमर्स उस माल को लेके जा रहे हैं। लार्ज फर्म्स often use these channels to cut distribution cost. Very, very important point. Large firms often use this channel to cut distribution cost and sell high level or high value industrial products, while small producers and those with perishable commodities sell directly to local consumers. अगर बच्चों आप किसी लार्ज फर्म की बात करें जहां पर सिर्फ मशीन्स बेची जाती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जनरली उसके बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो भी अपनी कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो उस कॉस्ट को कट करने के लिए वो डायरेक्ट चैनल जीरो लेवल का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आइटम्स बड़े होते हैं, नॉन पेरिशेबल होते हैं, और अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर से बात करे, तो वो उसको खरीद भी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मिडल मैन होता है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो कम हो जाती है। पर हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है, 8-10 दिन में खराब हो जाएगा, उसकी एक शेल्फ लाइफ है, तो उस केस में आपको और मिडल मैन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पॉइंट नंबर 4 एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं, इट इज एन इंपॉर्टेंट। लार्ज फर्म्स ऑफन यूज दिस चैनल टू कट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड सेल हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उनको इस तरह बेचा जाता है, while small producers and those with perishable commodities sell directly to local consumers। और जिनकी पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, वो डायरेक्टली लोकल कंज्यूमर्स को बेचते हैं। एंड दे माइट इन्वॉल्व other middlemen as well, जिनकी पेरिशेबल होती है, बट अदरवाइज दे कैन इजिली सेल टू लोकल कंज्यूमर्स एज वेल। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर, प्रोड्यूसर्स, जीरो चैनल कोई इन्वॉल्व नहीं है, टू द कस्टमर, और इसे कहा जाएगा डायरेक्ट
channel and zero level. अब indirect one, which is with one level. Here, producer is there, customer is there, and in between there is a retailer. So one level is there. पहले डायरेक्ट बेच रहे थे, अब वो इनडायरेक्ट बेचेंगे. This channel involves one middleman, the retailer. Producers sell their products to big retailers, who in turn sell it to ultimate consumers. तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को रिटेलर्स को बेचते हैं और रिटेलर्स फिर उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स को बेचते हैं. This channel relieves producer from the burden of selling themselves while maintaining some control over distribution. यहां पर जो इस चैनल में जो प्रोड्यूसर है उस पर से एक बर्डन उतार दिया जाता है कि वो डायरेक्टली जाके कंज्यूमर्स को बेचे. तो बीच में जब रिटेलर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दे हैव सम कॉस्ट इन्वॉल्व जहां पर अपना शेयर लेते हैं. तो बट फिर भी जो प्रोड्यूसर है दे हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर वो बनाएंगे नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे रिटेलर को, तो वो आगे कैसे देगा. कुछ कंट्रोल उनके पास रहता है. बट यस, विद द हेल्प ऑफ अ मिडल मैन, it becomes easier for them to reach to the market and then to the final consumers. It is suitable for distributing consumer durables and high value products. और इसमें बच्चों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, जहां प्रोड्यूसर खुद प्रोडक्ट को बनाता है, बीच में एक रिटेलर रखता है और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को सीधे इनके पास पहुंचाया जाता है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर गैजेट्स that we use, for example fan, refrigerator, television. तो इसमें इस चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, which is an indirect one and one level channel. थर्ड वन आप खुद ही देख सकते हैं यहां पर. थर्ड में टू लेवल्स हैं. इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर है, कस्टमर है, बीच में एक होलसेलर है और रिटेलर है. अब दो मिडलमैन आ गए. This is indirect two levels. This common and traditional channel involves two middlemen, wholesalers and retailers. Producers sell to wholesalers, who sell to retailers, who then sell it to consumers. Simple, very simple. This channel suits producer with limited finance, जिनके पास limited finance होता है, वो सीधा consumers तक नहीं पहुंच पाते हैं. तो मिडलमैन को कहते हैं भैया तुम हमसे उठा लो, थोड़ा सस्ता उठा लो, तुम इसमें अपनी परसेंटेज लगा दो. और फिर रिटेलर को होलसेलर कहता है तुम हमसे उठा लो, इसमें थोड़ी सी अपनी परसेंटेज लगा दो और फिर फाइनल कंज्यूमर को भेज दो. तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास लिमिटेड फाइनेंस ऑप्शंस होते हैं, तो वो खुद से ना जाके एक दो तीन मिडल मैन को बीच में इन्वॉल्व कर रहे थे. नैरो प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा वाइड नहीं होती, नैरो प्रोडक्ट लाइन होती है. मतलब किसी कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर बना रहा है या प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट्स बना भी रहा है तो वो नैरो लिमिटेड लाइन होती है. 5 6 7 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, होलसेलर्स को बेचते हैं, वो उन्हें रिटेलर्स को बेचते हैं और रिटेलर्स को फाइनल कंज्यूमर्स तक बेच देते हैं. नैरो प्रोडक्ट लाइन and those needing the expert service and promotional support of wholesalers. और जिन्हें expert service चाहिए होती है, support of wholesalers चाहिए होती है, वो इस specific level का इस्तेमाल करते हैं. It is mostly used for products with widely scattered markets. और बच्चों कुछ products ऐसे हैं जिनकी markets बहुत scattered है. आप कुछ products ऐसे ले लीजिए जो आपको हर market में चाहिए but markets are very far off. तो एक प्रोड्यूसर कितनी मार्केट में जाएगा? अगर दिल्ली के अंदर भी उसको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है तो ही रिक्वायर्स सम मिडलमैन टू टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोस प्रोडक्ट्स. सो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, दिस इज टू लेवल्स. फोर्थ, प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, 3 लेवल्स. अब यहां पर 3 लोग आ गए हैं बीच में, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर. The longest channel involves 3 middlemen. पहला है प्रोड्यूसर हैंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन टू सेलिंग एजेंट्स. ये पहला है सेलिंग एजेंट, इसको डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाती है, इसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं.
फिर वैसे जैसे पीछे था, सेकंड होलसेलर हो गया, थर्ड आपका रिटेलर हो गया, एंड फाइनल इज कस्टमर. So the longest channel involves three middlemen: producer, hand over distribution to selling agent. Agents are distributors too, who distribute the products among wholesalers, who then distribute it to retailers, who finally sell it to consumers. This channel is suitable for wide distribution of various industrial products. Entrepreneurs must choose a suitable distribution channel that is flexible, effective, and consistent with their marketing policies and programs. तो बच्चों, एंटरप्रेन्योर्स को उसी चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, इफेक्टिव हो और कंसिस्टेंटली उनको मदद कर सके. While selecting a channel, they should compare cost, sales volume, and expected profits from different channels, considering the following factors. तो बच्चों, जब भी इन चैनल्स को चूज किया जाता है तो पहले तो कॉस्ट को कंपेयर कर लिया जाता है, कौन कितना परसेंटेज चार्ज कर रहा है, कौन कितना माल उठा रहा है, सेल्स वॉल्यूम कितनी दे रहा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हर जगह से कितना है. फॉर एग्जाम्पल, यहां से माल बना, इट वेंट टू द एजेंट, एजेंट बल्क में माल उठाएगा, पर जितना बल्क में एजेंट माल उठाएगा उतना होलसेलर नहीं उठाएगा, होलसेलर कम बल्क में उठाएगा, रिटेलर उससे कम बल्क में उठाएगा, तो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर इज मेकिंग सोप और एजेंट उठाता है 1000 यूनिट्स, तो होलसेलर उठाएगा 300 यूनिट्स और रिटेलर उठाएगा 30 यूनिट्स और कस्टमर उठाएगा 3 यूनिट्स. तो हर जगह पर, यहां पर जो 1000 यूनिट उठाएगा तो प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट होगा, जब एजेंट से वो 300 यूनिट उठाएगा तो यहाँ कम प्रॉफिट होगा, पर प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट ले चुका है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखना पड़ता है. और लोगों के पास बच्चों आज की डेट में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक ही कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लोगों के पास अनेकों प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. आर यू गेटिंग इट? यस. सो व्हाइल सिलेक्टिंग अ चैनल दे शुड कंपेयर कॉस्ट, क्या कॉस्ट लगेगा, किस सेल्स वॉल्यूम में और किस वॉल्यूम में माल उठाया जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स कितने होने वाले हैं, एंड फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड. फैक्टर्स आर इन द नेक्स्ट स्लाइड. प्रोडक्ट कंसिडरेशन, ये फैक्टर्स हैं दो, प्रोडक्ट कंसिडरेशन एंड मार्केट कंसिडरेशन. So let's have a look towards these factors. Product consideration, unit value of the product. Costly products like industrial machinery or gold ornaments use small distribution channels, while less costly products use longer channels. बच्चों, जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट चैनल्स यूज करते हैं, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, क्योंकि वो बेचे जा सकते हैं, तो उसकी डिमांड भी होती है. और डिमांड ऐसे नहीं कि सबके पास होती है, लिमिटेड डिमांड होती है, लिमिटेड लोगों के पास होती है, एंड दे कैन गेट डायरेक्टली इन टच विद द प्रोड्यूसर. बट ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिनकी डिमांड डाइवर्सिफाइड बहुत सारे एरियाज में है, तो वहां पर भी रिक्वायर चैनल्स, और वो इतने कॉस्टली नहीं होते हैं प्रोडक्ट. स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स. स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स लाइक यूटेंसिल्स यूज लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देंगे मिल्टन की यूटेंसिल्स, उनके लिए लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इट इज इन मुंबई, और ये प्रोडक्ट चाहिए सदर्न पार्ट, तो बहुत बड़ा है सदर्न पार्ट, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास माल पहुंचेगा, फिर होलसेलर्स के पास पहुंचेगा, और फिर रिटेलर्स के पास पहुंचेगा, या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पास से रिटेलर्स के पास ही पहुंच सकता है. Customized products like furniture benefit from direct sales or face-to-face interaction between producers and consumers. कुछ standardized products हैं, किसी में long distribution channel चाहिए होता है, और there are certain products like furniture जहां पर बेनिफिट होता है डायरेक्ट सेल से, फेस टू फेस से आप सीधा फर्नीचर की शॉप में जाते हैं, वहां प्रोडक्शन की भी जाती है और बेचा भी जाता है. तो देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. सो इन्हें कहा जाता है स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स. पेरिशेबिलिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो पेरिशेबल हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके लिए दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किया जाता है.
highly perishable items should have minimal or no middleman, while durable goods can use longer distribution channels. और जो हाईली पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके लिए भी जो मिडल मैन है ना के बराबर होते हैं. हाँ, प्रोड्यूसर, रिटेलर, इनडायरेक्ट वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाता है जहां पे प्रोड्यूसर होता है, रिटेलर होता है और कंज्यूमर होता है. बट जितना हो सके चैनल को छोटा रखा जाए क्योंकि माल पेरिशेबल होता है और जितना ये एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचेगा तो पेरिशेबिलिटी की डेट पास आ जाएगी एंड it will affect the product as well. So perishability, highly perishable items should have minimal or no middleman, while durable goods can use longer distribution channels. Technical nature. Technical nature are better supplied directly to consumers to ensure they understand the necessary technicalities. और टेक्निकल नेचर के जो गुड्स होते हैं उन्हें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उन्हें डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है कंज्यूमर्स को ताकि जो नेसेसरी टेक्निकलिटीज है उनको समझाई जा सके. सो बच्चों, प्रोडक्ट कंसिडरेशन की जब बात आती है तो हम 4 पॉइंट्स पर बात करते हैं. यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, पेरिशेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, और टेक्निकल नेचर और प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्निकल नेचर. अब हम बात करते हैं मार्केट कंसिडरेशन. मार्केट कंसिडरेशन, number of buyers. Large number of buyers requires a middleman for distribution, while fewer buyers allow direct distribution by producer. जहां पर large number of buyers हैं वहां पर प्रोड्यूसर अकेला सबको माल नहीं बेच सकता, ही रिक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. और जहां पर बायर्स कम है, खरीदार कम है, वहां पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल किया जाता है. टाइप्स ऑफ बायर्स, जनरल बायर्स में नीड मोर मिडलमैन, while industrial buyer requires few middlemen. जो जनरल बायर्स होते हैं उनके लिए मार्केट्स बड़ी होती हैं, सो दे रिक्वायर मिडलमैन. वेयर इंडस्ट्रियल बायर्स जो इंडस्ट्री का सामान खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं या रॉ मटेरियल खरीदते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर मिडलमैन. वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से राब्ता करते हैं, उनसे मिलते हैं. बाइंग हैबिट्स, मिडलमैन सर्विसेज आर यूजफुल इफ कंज्यूमर्स ऑफन बाय ऑन क्रेडिट. तो मिडलमैन की सर्विसेज तब यूज की जाती हैं जब कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं उधार पे माल खरीदना, स्पेशली इफ द प्रोड्यूसर्स फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट अलाउ सेलिंग ऑन क्रेडिट. और ये तब किया जाता है कि प्रोड्यूसर तो अपना माल बना देता है और जब उसे आगे बेचना होता है तो वो उधार पे नहीं बेच सकता क्योंकि उसकी अपनी कंडीशन टाइट होती है. तो इस केस के अंदर ही रिक्वायर्स अ मिडलमैन जो क्रेडिट पर माल बेच सके, प्रोड्यूसर से खरीद के थोड़े दिन बाद पैसा उठाए, और there's a bit of risk involved in it. So buying habits, middleman services are useful if consumers often buy on credit. अगर consumer सिर्फ credit पर buy करते हैं, especially if the producer's financial position does not allow selling on credit. Buying quantity, middlemen are helpful when goods are bought in smaller quantities. Middlemen तब चाहिए होते हैं जब जो goods required होते हैं उन्हें smaller quantities पर बेचा जाता है. Size of the market, if the market area is widely scattered, producers should use middlemen for distribution. और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी मार्केट्स वाइडली स्कैटर्ड होंगी उस केस में प्रोड्यूसर्स को मिडलमैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए. So बच्चों, with this we have come to the end of today's class where we have talked about the channels of distribution, where we have talked about producer and customer. It's a direct channel, zero level, no middleman in it. Then we talked about producer, retailer, customer. This is indirect channel, one level where in between producer and customer, retailers are involved. Then we talked about producer, wholesaler, retailer, and customer. These are two levels where in between producer and customer, wholesaler and retailers are involved. And then we talked about three levels where in between producer and customer, three middlemen are involved. The one is agent, who is a distributor, wholesaler and retailer. Then we talked about product consideration, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं. Then we talked about market consideration, कितने टाइप की मार्केट्स होती हैं. तो बच्चों, जब भी प्लेस मिक्स की बात होगी तो इन आप 4 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूर बात करेंगे और आप जरूर बात करेंगे प्रोडक्ट कंसिडरेशन की और मार्केट कंसिडरेशन की. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. आप ये मान के चलिए कि इस क्लास में से अगर 10 नंबर का पेपर नहीं आएगा तो 5 से 6 नंबर का पेपर आपका जरूर आए. सो प्लीज
attend this class once or twice, try to understand each and every point shared with you, and don't forget to take up our rigorous practice section, जिसमें हमने आपके लिए पूरा सिनॉप्सिस तैयार किया है, वोकैबुलरी वर्ड्स दिए हैं आपको, इंग्लिश और हिंदी बोथ, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स दिए, ये रहे क्वेश्चन सारे और ये आंसर्स हैं. Then we have provided you 10 objective type questions. Along with answers. Then true and false statements along with answers. Then fill in the blanks along with answers. So, बच्चों, certain topics are so important that you should not miss rigorous practice section of those sessions. It is so because once you attend the session, once you rewatch the session, and then you attend all the questions in rigorous practice section, you are going to understand the concept thoroughly, and this is what our wish is. So bacho, this has brought us to the end of the class. Until we meet next time, bye bye for now. Keep studying, keep sharing these classes with others, and keep help your friends to subscribe to our channel, those who wish to study entrepreneurship of class 11th and 12th absolutely free of cost. So bacho, bye bye for now. God bless you all, and always remember, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain.